Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to do respiration in 13 to 15 minutes, whole topic respiration. So let us start. Firstly, what is respiration? Respiration is the process by which food is taken through the body through the process of nutrition and get oxidized and release energy performing various activities. So respiration is a process by which the food is taken in by the process of nutrition and it is broken down into smaller pieces in absorbable form. So oxygen acquired by organisms from outside the body is used to break down the food materials to provide energy. So oxygen helps to churn the food. So let's start with the respiration. So respiration is the process of biochemical oxidation of nutrients at cellular level. It happens in cytoplasm and continues in mitochondria. In human beings it occurs with the help of some enzymes, and the enzymes are catabolic and it is also a catabolic process. Catabolic process वो प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं. It is in which exchange of gases happens, oxygen and carbon dioxide. ओके सो इसकी क्वेश्चन क्या बनी है? फूड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. So firstly, respiration is of two types: aerobic respiration and anaerobic respiration. So aerobic respiration is a process in which large amount of energy is released in the presence of oxygen from the breakdown of substances. So it is a process which happens in the presence of oxygen. So इसका वो क्या बनेगा? 6C6H12O6 ग्लूकोज इस ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुवेट बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स का, और उसके बाद एनर्जी, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, और वो उसके बाद ये कंटिन्यू कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. और क्या निकलेगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ 38 ATP निकलेगी. उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन. It is a process by which small amount of energy is released in the absence or lack of air or oxygen. So it is a process by which the breakdown of food happens in the absence of air. It happens in human muscles and some bacteria. And human muscles go temporarily anaerobic respiration because of very heavy loads of exercising. It doesn't happen all the time. They go anaerobic respiration only when we exercise too much. So now alcoholic fermentation. So it is a incomplete breakdown of sugar into ethanol and carbon dioxide to release energy. So इस और ये होता है ईस्ट में. सो इसका वो क्या बनेगा? ग्लूकोज इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म में होगा ये, और उसका क्या होगा? पायरुवेट बनेगा, उसके बाद एनर्जी भी बनेगी, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और 2 ATP होंगे. उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. सो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में होगा ये भी, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी रिलीज होगी, और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स में क्या होगा कि क्रैम्प्स आते हैं और लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, और 2 ATP रिलीज होंगी, और वहाँ पे कितने थे? 38 मॉलिक्यूल्स. सो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने कर लिया है. उसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. करने से पहले ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो ये एनर्जी करेंसी भी होता है सेल का. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स: ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज. Breathing is just exchange of gases, and gaseous exchange is diffusion of oxygen from alveoli to blood vessels. उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, और ये होता है ब्लड सेल्स में. सो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज इन प्लांट्स. सो लीव्स में क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है स्टोमेटा की हेल्प से. स्टोमेटा एक्सचेंजिंग यूनिट्स ऑफ प्लांट होती हैं,
वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनका काम होता है और ट्रांसपीरेशन भी उनका काम होता है। इन रूट्स एयर पार्टिकल्स जो उनसे हैं रूट सॉइल के अंदर, वो उसको डिफ्यूज़न के प्रोसेस से लेते हैं, और स्टेम्स में भी सेम होता है। अब गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सबसे पहले एक्वेटिक एनिमल्स, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ मच मोर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो एक्वेटिक एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है एज मच ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। वेयर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लो विद कंपेयर टू फ्री ऑक्सीजन। सो इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म दे यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सो अब ये अलग अलग टाइप के एनिमल्स में अलग अलग टाइप के गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे कि अमीबा और प्लानेरिया में सेल मेम्ब्रेन से होता है, अर्थवर्म एंड लीचेस में मॉइस्ट स्किन से, फिश में गिल्स से, फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स दोनों से, ग्रास होपर एंड माउस फ्लाई में स्पाइरकल्स एंड एयर ट्यूब्स, whereas birds, lizards and terrestrial animals lungs. So now we will talk about human respiratory system. So the first part of human respiratory system is nostrils. Air is taken into the body through the nostrils, lined by fine hair and mucus, which helps to filter the air entering through it. So बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में जो हमारे एयर से और म्यूकस से फिल्टर आउट हो जाते हैं। सो उस डस्ट पार्टिकल्स को वो फिल्टर आउट कर देती है। नेक्स्ट होता है नेजल पैसेज। सो एयर एंटर टू द नोस्ट्रिल्स लीड्स टू द नेजल पैसेज, और इसका कोई ज़्यादा रोल भी नहीं होता, बस इसका पैसेज होता है, मतलब जो सा ये एक ट्रांसफ़र का काम करता है एयर को रेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फेरिंग्स जो होता है नेसल चैम्बर, उसके बाद फेरिंग्स में जाता है, उसके बाद लैरिंग्स ये नेक रीजन में होता है, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया एंड इट प्रोड्यूसेस साउंड। सो ट्रैकिया को हम वेंट पाइप भी कहते हैं। एयर पासेस फ्रॉम द फेरिंग्स एंटर इन द ट्रैकिया। तो जो सी एयर फेरिंग से ट्रांसफ़र होती है वो ट्रैकिया में एंटर होती है, एंड इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कीप ट्रैकिया ओपन। सो जो सी कार्टिलेज की रिंग्स है वो ट्रैकिया को ओपन रखती हैं ताकि वो एयर जो है वो उससे पास हो सके। नाउ ब्रोंकाई, अब जो से ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और ये 2 स्मॉलर ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में। अब ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो लंग्स में होते हैं, और ये उसके बाद इनका एक रेस्पिरेटरी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोली, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये बोथ द साइड्स में होते हैं लंग्स की। और इनका जो है इनका मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करना, बिकॉज इनकी जो सी मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पतली होती है जिससे डिफ्यूज़न आराम से हो जाता है। उसके बाद आते हैं रिब्स जो है वो 12 पेयर ऑफ बोन्स होती है, मतलब 24 जो सी थोरेसिक रीजन में होती है। थोरेसिक रीजन जो सा अपर एब्डोमेन होता है जहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं उसको ही थोरेसिक रीजन कहते हैं। एंड जो सी मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट होते हैं लंग्स, ये प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जो सी हार्ट की दोनों साइड्स पे होते हैं, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, और ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ब्लड में, एंड ब्लड इनटू एटमॉस्फेयर, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होते हैं जिसको प्लूरा बोलते हैं। नाउ डायफ्रागम, और ये बस एक पार्टीशन होता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में, और ये जो जब हम इनहेलेशन करते हैं ये फ्लैट हो जाता है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये थोड़ा सा वो फ्लैट नहीं होता है। उसके बाद ये चेस्ट एरिया को भी इंक्रीज़ कर देता है ताकि ब्रीदिंग आराम से हो सके। उसके बाद अब प्रोसेस स्टेजेस भी होती हैं इसमें, जैसे इनहेलेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स वेयर इट इज़ फिल्टर्ड बाय एयर एंड म्यूकस, जो मैंने बता दिया। देन एयर पासिस टू द ट्रैकिया
and then chest cavity becomes larger due to the flattened diaphragm and lifted ribs, and then expansion of chest cavity create a partial vacuum in the chest cavity, and then air is sucked it into the lungs and expanded alveoli, and now exchange of O2 and CO2, it happens to the small fine walls of the alveoli and the blood vessels. So oxygen is taken up by blood from the alveoli by two blood vessels. Now blood releases CO2 into the alveoli that it brings from the whole body. So hemoglobin takes in the oxygen and supplies the oxygen to the rest of the body. Now respiratory pigment. So during the diffusion, pressure alone can't take care of the all parts of large sized animals, because if it diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated it would take 3 years of each molecule to get to the from our lungs. So respiratory pigments take up O2 from the air and in the lungs and carry. So इसमें क्या बताया गया है कि अगर बिना रेस्पिरेटरी पिगमेंट के कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ब्लड सेल्स के तक पहुंचेगा उसे 3 साल लगेंगे. सो हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, और हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का साथ बाइंड कर लेता है जिससे वो उसको ट्रांसफर करता है. नाउ एक्सेलेशन. CO2 is transported in the dissolved form in the blood. From blood, CO2 passes alveoli. Chest cavity is compressed due to the relaxation of the ribs and diaphragm. Then air is forced out of the lungs. So this was all about the respiration. So I'll meet you in the next video. Till then, and